everyone. This is your EVS class. This is your EVS video class, and as you know that we have been doing chapter 9 since past few videos. पिछले कुछ वीडियो से हम आपकी जो EVS की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, and the name of the chapter is Days to Celebrate. Children, I hope you all are watching the videos. It is very important for you to watch the videos so that you can understand the chapters well, because the chapters that we have been doing, the chapter which is we are doing, it has many difficult words. कुछ उसमें नए words हैं, कुछ उसमें difficult words हैं, and to understand those words you must watch the videos. जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको सिर्फ चैप्टर की रीडिंग लगाने से वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपका देखना जरूरी है चैप्टर्स को, और उसके जो डाउट्स है वो आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कीजिएगा। बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो, यू नीड टू रीड द चैप्टर एंड देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स। आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर है डेज टू सेलिब्रेट उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन इन द पास्ट वीडियो। पूरा हम जितने भी उसमें फेस्टिवल्स थे, नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल, दैट वी हैव डिस्कस्ड सम extra festivals that are not mentioned in the chapter, that also I discussed with you. Now we will do the exercise, but before starting the exercise we will just revise what we did in the chapter till date. अब तक हमने क्या क्या उसमें सीखा उसको एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज। Children, the chapter Days to Celebrate is about the days that we celebrate apart from birthday celebrations, wedding anniversaries, and other celebrations. The top priority that we give for celebration is for the festivals. Festivals को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सेलिब्रेशन में, बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत सारे, और जो इंडियंस हैं वो हर फेस्टिवल को बहुत खुशी से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे देश में तो वैसे भी फेस्टिवल्स की भरमार है, हर मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। Children, we have read that there are two types of festivals. One is national festival and other one is religious festival. The national festivals of India are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Independence Day is celebrated on 15th of August every year. Republic Day is celebrated on 26th January every year, and Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October every year. ये तीनों फेस्टिवल हम डिस्कस कर चुके हैं in detail in our previous video. Those who have not watched, please watch those videos to understand it. Then coming to religious festivals. Children, there are many religious festivals which are celebrated in India, and we have discussed few that are given in the book and one or two more that I have explained. Children, we discussed Diwali, one of the most important festival of Hindus. Then we discussed Dashera, which is also one of the most important festival of Hindus. ये दोनों हिंदू रिलीजन के बहुत important festivals हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। इस पर हमने डिस्कस किया था। वॉच द प्रीवियस वीडियो टू गो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। Then we discussed Eid al-Fitr, which is one of the most important festival of Muslims. इस्लाम रिलीजन का, मुस्लिम्स का ये ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है ईद उल फित्र। देन गुरुपुरब, जिसको गुरु पर्व भी बोलते हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट और मेजर फेस्टिवल ऑफ सिख। देन वी डिस्कस्ड क्रिसमस. Christmas is important festival for Christians.
the people who belong to Christianity, it is their important festival. Then we discussed Holi, which is also known as Festival of Colors, and this is also a Hindu festival, but as I have said for all the festivals, that though we say that it is Hindu festival, it is Muslim festival, it is Christian festival, but there is no such hard and fast rule कि उसी religion के लोग उस festival को मना सकते हैं. India is a free country, India is a secular country. You can celebrate any of the festival that you like. आपका मन करे आप सारे festivals celebrate कर सकते हो. अगर किसी भी religion का वो festival है, आप चाहो तो वो celebrate कर सकते हो. ठीक है? Then we discussed Janmashtami, which is also festival of Hindus. It is birthday of Lord Krishna. Then we discussed Pongal, which is one of the major festivals of South India. It's the festival of Tamil Nadu, जो बहुत फेमस है. और ऐसा ही मिलता जुलता फेस्टिवल हमारे नॉर्थ इंडिया में है, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति. हमारे वेस्टर्न इंडिया में ऐसा ही मिलता जुलता एग्जैक्टली वही फेस्टिवल है, अलग नाम से, जिसे बोलते हैं उत्तरायण. देन वी हैव बिहू, विच इज सिमिलर टू दिस. हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू असम का. ये हमने डिस्कस किया. फिर हमने डिस्कस किया रक्षाबंधन, जो कि अभी रिसेंटली आने भी वाला है. तो रक्षाबंधन, जो कि वैसे तो हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन इसको सिख जैन सब लोग मनाते हैं, क्योंकि ये ब्रदर एंड सिस्टर के लव एंड अफेक्शन का फेस्टिवल है. तो देयर इज नो बॉन्डेज ऑफ कि इसको सिर्फ हिंदू मनाएंगे या इसको सिर्फ सिख मनाएंगे. एनीबडी और एवरीबडी कैन सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. फिर हमने गणेश जो पूजा है उसकी भी बात की थी, जो महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है, जो आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट आई डिस्कस दैट विद यू बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र. मराठी लोगों का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. और इसके अलावा बहुत सारे और फेस्टिवल हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं. एक हमारे नॉर्थ जो यूपी और बिहार बेल्ट का एक फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा, उसको भी हमने डिस्कस किया था. मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि ये हमारे एरिया में बहुत ही ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता है. मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग छुट्टी पे लेते हो इस फेस्टिवल के लिए. 4-5 डेज की छुट्टी लेके आप स्कूल से छुट्टी ले लेते हो. आपके घर में आपकी मम्मी लोग ये फास्टिंग करती होंगी, तो इसलिए मैंने इस फेस्टिवल की भी चर्चा की थी आपके साथ, इसको भी डिस्कस किया था. जितने भी हमने ये फेस्टिवल डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द फेस्टिवल्स इन वन चैप्टर. तो मेजर फेस्टिवल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए. तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज. पहला एक्सरसाइज है जो ए है, वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन. अगेन सेंटेंसेस है, उसके सामने ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस हैं. किसी 4 ऑप्शंस आर गिवन. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही वाले ऑप्शन को चुनना है और उस पर राइट का निशान लगाना है. ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज हम पास सारे चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा. फर्स्ट पार्ट हमेशा होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर. ए TICK, टिक द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा. इट इज ऑन पेज नंबर 61. ओपन योर बुक, पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 आप खोलेंगे. ठीक है, पेज नंबर 61 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, पहला वाला जो है वो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें क्या करना है, विच festival is known as the festival of lights. पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, which festival is known as the festival of lights. Festival
of lights. Very easy. Is it an easy question? Which festival is known as Festival of Lights? कौन सा इंडियन फेस्टिवल है जिसको कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है? किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है? स्टूडेंट, द ऑप्शंस आर ए दिवाली, बी रक्षा बंधन, सी होली एंड डी पोंगल। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए है दिवाली, बी है रक्षा बंधन, सी है होली और डी है पोंगल। सो विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट? लाइट का फेस्टिवल किसे कहा जाता है? आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर। यस, इट इज दिवाली। दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि इस दिन हम अपने घर को दियों से, कैंडल से, बल्ब से, झालरों से पूरा सजाते हैं, है ना? तो वी ऑल नो दैट दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो जो हमारे ऑप्शन हैं, आंसर में हम पहले आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इट इज रिटन लाइक दिस दिवाली। बी में लिखा हुआ है रक्षाबंधन, RAKSHA रक्षा, BANDH तो जगह कम है, इधर लिख दिया रक्षाबंधन। देन C इज होली एंड D इज पोंगल। एंड सबके सामने एक ऐसा चेक बॉक्स है, ठीक है? ऐसा चेक बॉक्स बना हुआ है, यू हैव टू पुट अ टिक इन दिस। दिवाली पर आपको ऐसे राइट का निशान लगाना है। ओके? Which festival is known as the festival of light? And answer is Diwali. So you take the option Diwali. दिवाली को आप टिक कर देंगे, ठीक है? इसको आप, ये फर्स्ट वन हमने कर लिया। Now we'll do the second one. So now let's start the second one. First we have done. Now moving on to the second one. Okay? Let me wrap this. Children, the second one is, in Holi we play with first है A ऑप्शन है goats, B है crackers, C is colors and D is guns. होली के बारे में है ये क्वेश्चन। इन होली वी प्ले विद, होली में हम किसके साथ खेलते हैं? हम गोट्स के साथ खेलते हैं, बकरी के साथ? नो। क्रैकर्स, पटाखों के साथ खेलते हैं? नो। कलर्स के साथ खेलते हैं? यस, वी प्ले विद कलर्स एंड नॉट विद ऑप्शन डी गन्स। हम गन्स के साथ भी नहीं खेलते हैं। मतलब ऑप्शन ए, बी और डी तीनों रॉन्ग हैं एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। In Holi, we play with colors and not with crackers, guns or goats. We play with colors. So correct option is option C, colors. Let me write number 2. In Holi, we play with A, goats, which is wrong, B, crackers, which is also wrong, C, colors, which is the correct option, and D, guns, this is also not correct. So goats, crackers and guns are not the answer. The correct answer is colors. In Holi, we play with colors. Okay? Clear? Now moving on to the third one. Third is Independence Day is celebrated on blank.
Independence Day is celebrated on, options are 25th December, B is 2nd October, C is 15th August, and D is 26th January. Now children, this is related to our Independence Day. When do we celebrate India's Independence Day? इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? Is it 25th December? No. Is it 2nd October? No. Is it 15th August? Yes. India's Independence Day is celebrated on 15th August. Children, option D is 26th January, which is also not correct. Children, on 25th December, Christmas Day is celebrated. On 2nd October, Gandhi Jayanti is celebrated. On 26th January, Republic Day is celebrated. So, the correct answer is that Independence Day is celebrated on 15th August. Okay? So, correct answer is option C, 15th August. Okay? Let me write INDEPENDENCE, Independence Day. Okay? Independence Day, which is our national festival. We know that Independence Day is our national festival. Independence Day is celebrated on, and option A is 25th December, which is not correct. B is 2nd October, which is not correct. C is 15th August, which is the correct option. Okay. D आपका है 26th January, which is also not correct. 26th January भी सही ऑप्शन नहीं है. I am not writing the correct spelling because हमको correct option अपना मिल गया है. हमारा correct option है 15th August. Independence Day is celebrated on 15th August. Okay. So this is the first exercise of your chapter number 9, which is pick the correct option. ये हमने complete कर लिया. Okay. Only three sentences were there in this exercise that we have completed. ये हमारा हो गया. Now moving on to the next exercise. And so the B part of the exercise is give one word answer. Now in this exercise you have to answer in one word. एक word में आपको answer देना है. You have to answer in one word. And children, the sentences are, let me read for you. First one is, one function you celebrate with your family. Now children, this is very easy. You have to write any one function that you celebrate with your family. And there are many functions that you celebrate with your family. आप तो बच्चे हैं, आप तो सारे फेस्टिवल ही अपनी फैमिली के साथ मनाते होंगे. तो आपको कोई भी एक फंक्शन, एक फेस्टिवल आपको लिखना है यहाँ पर. एंड द चॉइस इज अप टू यू. आप कोई भी लिख सकते हो. आप दिवाली, दशहरा, होली, कुछ भी, बर्थडे, जो भी आप चाहो अपनी मर्जी से इसमें लिख सकते हो. ठीक है. दिस क्वेश्चन इज अप टू यू. आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या लिखना चाहते हो. ठीक है. द फर्स्ट, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. Question is give one word answer. Give one word answer. And one is one function. आपको function बताना है कोई that you celebrate. That you celebrate with your family. With
your family. Okay, you have to mention, you have to write the name of one function that you celebrate with your family. तो फंक्शन में आप वेडिंग लिख सकते हो, आप बर्थडे लिख सकते हो, और आपके घर में जो भी फंक्शन होता है, आई वुड सजेस्ट टू राइट बर्थडे, बिकॉज हम सारे बर्थडे तो अपनी फैमिली के साथ ही मनाते हैं, स्पेशली यू, आप तो बच्चे हो, आप तो अपना बर्थडे 100% अपने फैमिली के साथ ही मनाते हो, तो इसलिए यू कैन राइट हियर बर्थडे. ओके, वन फंक्शन दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली इज बर्थडे. बट अगेन आई वुड से आपकी मर्जी है, आप कोई और फंक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो. ठीक है, आई एम राइटिंग फॉर यू इज बर्थडे. ठीक है, यहाँ पे मैं बर्थडे लिख देती हूँ. आई एम राइटिंग बर्थडे. You can write birthday or you can write some other function. आप कुछ और function चाहो तो वो भी लिख सकते हो. ठीक है. Now the next one is second number is the national festival celebrated on 2nd October. You have to write the name of the national festival that is celebrated on 2nd of October. 2 अक्टूबर को, 2nd अक्टूबर को कौन सा national festival celebrate किया जाता है? You have to write the name of that national festival. तो कौन सा है ये नेशनल फेस्टिवल जो हम 2nd अक्टूबर को मनाते हैं? चैप्टर तो हमने पढ़ा है, आपको पता होगा आंसर. नेशनल फेस्टिवल हमारे 3 ही है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. तो इन तीनों में से कौन सा वाला है जो हम 2nd अक्टूबर को मनाते हैं? यस, इट इज गांधी जयंती. गांधी जयंती हम 2nd अक्टूबर को मनाते हैं, विच इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, ये गांधी जयंती हम 2nd अक्टूबर को मनाते हैं. We will write it, the question, the national festival celebrated on 2nd October. And the festival is, students, you must be able to read the sentence. आपको sentence भी तो पढ़ना आना चाहिए. The national festival, यहाँ पे थोड़ा बारीक बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. Festival celebrated on 2nd October. This is a national festival. The national festival celebrated. C-E-L-E-B-R-A-T-E-D. The national festival celebrated on 2nd October. And the answer is G-A-N-D-H-I. Gandhi and Jayanti. J-A-Y-A-N-T-I. Gandhi Jayanti. Check the spelling. G-A-N-D-H-I. Gandhi. J-A-Y-A-N-T-I. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October. ठीक है. थर्ड वन लिखे. थर्ड वन, the festival to worship goddess Durga. कौन सा फेस्टिवल है जिसमें गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है? कौन से फेस्टिवल में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है? दैट वी हैव रेड इन द चैप्टर. विच फेस्टिवल इज दैट? जिसमें आप दुर्गा पंडाल में जाते हो, माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी उसमें आइडल्स होते हैं, मूर्ति होती है, जिसमें वो एक राक्षस को मार रही हैं. राक्षस का नाम है महिषासुर. आप जाते हो ना फेस्टिवल, जब पंडाल लगते हैं उसमें दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी मूर्ति होती है और दुर्गा माँ उसमें एक राक्षस को मार रही होती है उस मूर्ति में. कौन सा फेस्टिवल होता है वो? यस, दशहरा. दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा लिख सकते हो या दशहरा लिख सकते हो. स्टूडेंट यू कैन राइट ईदर दशहरा और दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा होता है, दशहरा जो होता है उसमें आप देखते हो कि जो शक्ति है, माँ शक्ति दुर्गा जो है वो डेमोन महिषासुर को मारती है. तो हम दशहरा लिखेंगे इधर. ठीक है, आई विल राइट हियर फॉर यू द फेस्टिवल टू वर्शिप
the festival to worship goddess Durga. Students, goddess Durga is also called goddess Shakti. इनको शक्ति की देवी भी कहा जाता है. आई एम टेलिंग यू बिकॉज इन योर चैप्टर इट इज मेंशन्ड एज शक्ति. आप अगर देखोगे आपकी बुक में पेज नंबर 58 पर लिखा हुआ है. You can see on page number 50 it is written over here, the victory of goddess Shakti. Okay, victory of goddess Shakti over the demon Mahishasura. And why I told you that this goddess Durga is also called goddess Shakti. इनको माँ शक्ति भी कहा जाता है because in your chapter it is written Shakti, goddess Shakti. So don't get confused कि मैम ये आंसर तो बुक में है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं हुआ. गॉडेस दुर्गा का नाम तो बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ. चिल्ड्रन लिखा है गॉडेस शक्ति के नाम से लिखा हुआ है. शक्ति एंड दुर्गा आर सेम गॉड. एक ही गॉडेस को शक्ति भी कहते हैं और दुर्गा भी कहते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि चैप्टर में तो दुर्गा लिखा ही नहीं है. लिखा है शक्ति लिखा है. गॉडेस दुर्गा की जगह गॉडेस शक्ति लिखा है विच मीन्स द सेम. दोनों का मीनिंग सेम होता है. ठीक. तो दशहरा है फेस्टिवल विच shows the victory of goddess Shakti over the demon Mahishasura. demon मतलब राक्षस. राक्षस महिषासुर को उन्होंने मारा था. तो दशहरा मनाया जाता है. ठीक है. आपको समझ में आ गया. गॉडेस दुर्गा इज गॉडेस शक्ति. दुर्गा ही शक्ति है. ठीक है. तो हम यहाँ लिख देंगे दशहरा. ठीक है. चिल्ड्रन दशहरा की जगह आप दुर्गा पूजा भी लिख सकते हो विच इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. ऐसा नहीं है कि अगर आप दुर्गा पूजा लिखोगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा. दुर्गा पूजा बिकॉज इन वेस्ट बंगाल इट इज कॉल्ड दुर्गा पूजा. हम दशहरा बोलते हैं. जनरली वी कॉल इट दशहरा बट इन वेस्ट बंगाल इट इज कॉल्ड दुर्गा पूजा. So if you write Durga Puja, that is also correct, and when you write Dashera, this is also correct. Both answers are correct. Okay, so ये one word answer में हमारे 3 थे that we have completed. First one is let's read. One function you celebrate with your family. I have written birthday. You can write anyone. Okay, any of the function that you celebrate with your family, with your whole family. The second one is the national festival celebrated on 2nd October. We know that on 2nd October, Gandhi Jayanti is celebrated. It is birthday of Mahatma Gandhi. Then the third is the festival to worship goddess Durga. Goddess Durga को कौन से फेस्टिवल पे हम वर्शिप करते हैं? So the answer is दशहरा और दुर्गा पूजा. So then I will write it for you. यहाँ पे मैं दुर्गा पूजा भी लिख देती हूँ. ठीक है. DURGA दुर्गा COOJA दुर्गा पूजा. आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है. शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. आपका कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये हमने 2 एक्सरसाइजेज आपकी बुक के खत्म कर दिए आज. ठीक है. तो वी विल स्टार्ट थर्ड जो आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी बुक का दैट वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके. आज के लिए हमने हमने एक्सरसाइज खत्म कर ली आपकी. वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकेंड वन इज वन वर्ड आंसर. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मैच द कॉलम एंड क्वेश्चन आंसर्स. आज के लिए मेरे ख्याल से हमने 2 एक्सरसाइजेज सफिशिएंट फॉर यू. यू शुड गेट टाइम टू अंडरस्टैंड दो एक्सरसाइज. आप एक बार में बहुत सारा एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी. Again I'm repeating the same thing. Watch the videos देखेंगे तो आपको चैप्टर्स समझ में आएगा, आपको एक्सरसाइज भी समझ में आएगी. ठीक है. तो आज जो हमने एक्सरसाइज की है इसको आपको नोटबुक में करना है. आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज. आपको मैं रिटन एक्सरसाइज तो दूंगी ही बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो में पहले आप समझ लीजिए. लिख तो आप लेंगे ही.
कॉपी तो आप कर लेंगे आराम से, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्सरसाइज देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट। जब तक समझ में नहीं आए उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास, एंड देन राइट द एक्सरसाइज। उसके बाद ही आप लिखेंगे, जब तक समझ में नहीं आए उसको नहीं लिखना है, ठीक है। समझ लीजिए पहले, देन डू द एक्सरसाइज इन द कॉपी। तो बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे दिस मच वी विल डू, ओके। थैंक यू।